Good morning, children. Today we are discussing functions. Functions is the first chapter of class 12th. But in books, the first chapter is revision. All the contents of revision 2 we already have discussed in class 11th. So we can say functions is the first chapter of class 12th. So let's begin with functions. What is a function? Functions are the most important building blocks for any application in Python and work on the divide and conquer approach. So to design an application, a software in Python, the most important building blocks is what? A function. Functions work on divide and conquer approach. Means big applications are divided in small codes. In small codes. Those small codes are called functions. Second point, a function is a subprogram of a large program. As we discussed earlier, a large programs are divided into subprograms, small parts where each particular part is called a function, and each particular function perform a specific task. Next point, a function is a group of statements to perform a specific task. When we design a function, we write some statements. Those particular statements perform a specific task. Suppose we define a function to calculate simple interest. That particular function will calculate only simple interest. So the task of that particular code or group of statements is what? To calculate simple interest. The use of functions makes a program easy to read, write, understand, manage, and debug. Bug is what? Error. Debug means to make a program error free. Manage means when we have multiple parts, then we need to manage those. Means a large application are divided into, here in the point, second number point we discussed. A function is a subprogram of large program. Large applications are divided into subprograms. So it becomes necessary to manage those subprograms so that large application can be built. Next point is functions are line of codes that executed sequentially from top to bottom by the Python interpreter. We already discussed in class 11 interpreter and Python and compiler. Interpreter execute a code line by line, top to bottom. Means if we have a function and there are 10 statements, then the statement number 1 will execute first, statement number 2 will execute second, and so on. The statement number 10 will execute in last. So the execution starts from top to bottom by the Python interpreter. A Python function is written once but can be used or can be called any number of times. When we have been defined a function, we can call that function any number of times. Clear? Next point. Functions are also called routines, subroutines, procedures, or methods. So what we call function? Functions are also called routine, subroutines, procedures, or methods. All these are the another names of functions. Functions can be called methods, procedures, subroutines, and routines. Next slide. What are the types of functions in Python? Basically in Python we use three types of functions. Which three types of functions? These are discussed here. Built-in functions. Built-in functions are those functions which comes with Python interpreter. When we install Python, these functions automatically installed. Next functions in modules, which are stored in modules. Module is what? A group of
function. And the next point is user defined functions. User defined functions are those functions which we people define. A user defined means the functions which are created by user are called user defined functions. Built-in functions, already built-in functions which come with Python interpreter. Functions in modules, these are the libraries. User defined functions defined by. So first we discussed built-in functions. Built-in functions are the predefined functions that are already available in Python. These are what? The predefined functions which are already available in Python. Means Python के अंदर ये ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, हमें इनको यूज में लेने के लिए किसी और पर्टिकुलर कंटेंट को लगाने की जरूरत नहीं होती है. एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट, these functions are available in standard library and we don't have to import any module or file for using them. They are already available in standard library. Python has a standard library and all these functions, which functions? Built-in functions are stored there. Clear? Next point, examples. Type conversion function जैसे example में दिए गए. These functions convert values from one type to another type, जैसे int है, str, float, list, tuple, dict. We already have used these functions in class 11th. These functions convert a previous type to next another type. Okay, int, like this function int. Int what to do? Int convert a decimal value, floating point value to integer value. It convert any sequence into string. It convert integer type value into float. List will convert a sequence into list. Tuple will convert a sequence into tuple, and same as for dictionary. Another examples are like input function we use. It is also a built-in function. Eval function, built-in function. Min and maximum function, ABS function, type function, len function, round function, and range function. We already have discussed these functions in class 11. The one important thing is that we no need for any module or library to include in program to use these functions. Clear? Built-in functions after. Next point is functions in modules. Functions in modules are those functions which are stored in some modules. Basically मॉड्यूल होते क्या है? मॉड्यूल हम भी बना सकते हैं और मॉड्यूल पहले से बने हुए भी होते हैं. मॉड्यूल बेसिकली है क्या? मॉड्यूल इज ए ग्रुप ऑफ फंक्शंस वेयर फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट. क्लियर? अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइप के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है, हम उन सारे फंक्शंस को एक मॉड्यूल में स्टोर कर सकते हैं. पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड predefined modules. Python also provide predefined modules. Those we can use whenever necessary. A module is a file in Python that contains a collection of related functions to perform related tasks. Related functions to perform related tasks. कहने का मतलब एक मॉड्यूल बना दिया, उस मॉड्यूल का के अंदर जो फंक्शंस है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए फंक्शन है, या फिर कह सकते हैं कि मैथ का एक मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल का नाम है जियोमेट्री. दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल विल स्टोर ऑल फंक्शंस ऑफ ज्योमेट्री रिलेटेड. मीन्स उसके अंदर जितने भी फंक्शंस है वो सारे ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे. ओके, इफ यू हैव अ सेट ऑफ फंक्शंस needed in several different programs, we can place those functions in a module. अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस हैं और हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारे फंक्शंस यूज में आएंगे, तो हम उन सारे फंक्शंस का
चाहे वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस है या कुछ और फंक्शंस है, हम उन सब फंक्शंस का एक मॉड्यूल डिफाइन कर सकते हैं। To use functions from a module, we first import that module in our program, and then we can call its function and variables. अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो स्टोर्ड है, फंक्शन जो स्टोर्ड है, उनको यूज में लेने की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले क्या करना होगा, उस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे प्रोग्राम में। तो इंपोर्ट करने के क्या तरीके हैं? There are two methods to import modules in a program. Which two methods? Import statement. Import कीवर्ड है। Import बेसिकली क्या है, एक कीवर्ड है। Import स्टेटमेंट के थ्रू भी हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। Import मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट दिया गया है ये क्या है, ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपल्सरी। मीन्स import मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड सो ऑन। अगर हमें एक ही मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो मैथ किया, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो रैंडम कर सकते हैं। कोई और मॉड्यूल अवेलेबल है, टाइम मॉड्यूल करना है तो टाइम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मॉड्यूल जो आपको इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट हो, आप इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इंपोर्ट मैथ, and to use its function, किसके function, मैथ के, we specify module name followed by function name separated by dot operator. This format is called dot notation. याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है what is dot notation। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है डॉट नोटेशन का। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रिजल्ट एक वेरिएबल है, इक्वल मैथ, मैथ को हमने इंपोर्ट किया ऊपर, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी एक फंक्शन है जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर स्टोर्ड है। हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड करी, एक पैरामीटर प्रोवाइड किया 64। द एसक्यूआरटी फंक्शन will calculate square root of 64 and return the value at the same place from where it called, and through the equal operator, or we can say assignment operator, the value will be stored in result. This function will return 8. SQRT इसका 64 का क्या होगा, 8। ओके, फंक्शंस इन मॉड्यूल्स, आगे इसका सेकंड पॉइंट है, मतलब मॉड्यूल के अंदर से फंक्शंस को यूज में कैसे लें। तो उसका तरीका, एक तो मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लो, दूसरा तरीका है फ्रॉम स्टेटमेंट। मॉड्यूल को इंपोर्ट जब हम करते हैं तो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट होता है, और जब हम फ्रॉम स्टेटमेंट यूज में लेते हैं तो फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू एक पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें फंक्शन बनाना है x⁻⁴, तो हमें केवल एक फंक्शन की जरूरत है, उसका पावर फंक्शन यूज में ले सकते हैं मैथ मॉड्यूल का, हमें पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है। क्लियर? फ्रॉम स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू इंपोर्ट ऑल फंक्शंस और सेलेक्टेड वंस। एग्जांपल, फ्रॉम मैथ, ये स्टेट एग्जांपल दिया गया है, फ्रॉम मैथ, मैथ मॉड्यूल है, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा, एसक्यूआरटी और पावर। यहाँ पर दो फंक्शंस को हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। नाउ वी कैन यूज दीज फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम। देखो, समझने की बात यह है कि क्या फर्क पड़ता है जब हम इंपोर्ट स्टेटमेंट और फ्रॉम स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर सपोज मैथ मॉड्यूल के अंदर 20 फंक्शन है, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने, इंपोर्ट मैथ लिखने का मतलब है कि 20 के 20 फंक्शन आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो गए। प्रोग्राम में अवेलेबल हो गए, इसका मतलब उनका कोड आपके प्रोग्राम में ऐड हो गया, आपके प्रोग्राम का वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, मेमोरी कंजप्शन बढ़ गया। जबकि आपको केवल एक ही फंक्शन को यूज में लेने की जरूरत थी, तो आप फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू एक पर्टिकुलर फंक्शन को या एक से ज़्यादा फंक्शन जो आपको रिक्वायरमेंट है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये इंपोर्ट का एग्जाम्पल है, इंपोर्ट मैथ किया, एक्स इंट, देखो यहाँ पर ये टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, इनपुट भी एक फंक्शन है जो कि ऑलरेडी एक इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पर वैल्यू इनपुट की एक्स की, और ये वाई की वैल्यू इनपुट करी, और यहाँ पर हमने लिखा मैथ डॉट पावर फंक्शन, रिजल्ट इक्वल मैथ डॉट पावर फंक्शन POW x, y, it will result x raised to power y answer. Okay,
सो रिजल्ट इक्वल मैथ डॉट पावर एक्स कॉमा वाई, ये यहाँ पर प्रिंट में क्या करेगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा। ये पर्टिकुलर मैथ डॉट पावर जो एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड डॉट नोटेशन, ऐसे बोलते हैं डॉट नोटेशन। इसका आउटपुट दिया हुआ है। अगर सपोज में यहाँ पर x की वैल्यू हमने 25 इनपुट की और उसकी जो y की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 इनपुट करी, रिजल्ट क्या आएगा 625.0। क्लियर। एक दूसरा एग्जांपल लिया गया जो कि फ्रॉम को समझाने के लिए लिया गया है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पावर, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पावर, यहाँ पर हमने क्या किया है, मैथ फंक्शन से, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के लिए केवल एक ही फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने मैथ से केवल POW को, पावर फंक्शन को इंपोर्ट किया है। क्लियर। एक्स, बाकी स्टेटमेंट वही है, एक्स की वैल्यू को इनपुट कराया, वाई की वैल्यू को इनपुट कराया और रिजल्ट इक्वल पावर। यहाँ पर देखो, हियर नो नीड टू स्पेसिफाई दैट मॉड्यूल मैथ, पर्टिकुलर मॉड्यूल को स्पेसिफाई नहीं किया है। मैं पहले वाले एग्जांपल में लिखा हुआ मैथ डॉट पावर एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर केवल पावर लिखा हुआ है POW। ओके, रिजल्ट सेम प्रिंट होगा। अगर हम इनपुट वही करते हैं 25 एंड 25 एंड 2, द रिजल्ट विल बी 625। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। User defined functions are those functions which are created or defined by the user. User means we people. हम लोग जिनको डिफाइन करते हैं उन्हें बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जो बिल्ट इन फंक्शन है वो हमारी सारी टास्क को कंप्लीट करते हैं। हो सकता है हम इस तरह की कोई कैलकुलेशन यूज में ले रहे हैं जिसके लिए हमें एक फंक्शन बनाने की जरूरत है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए DEF एक कीवर्ड है, DEF के थ्रू हमें जो डिफाइन करते हैं फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। इसका सिंटैक्स देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में, a UDF यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमारे पास में फंक्शंस जो इनबिल्ट फंक्शंस है या फंक्शंस जो मॉड्यूल के अंदर स्टोर्ड है उनको कितने भी बार कॉल किया जा सकता है, उसी तरह से जब आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बना देते हो उसके बाद में आप उस फंक्शन को कितनी बार आप उसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स है DEF फंक्शन का नाम। फंक्शन नेम जो होता है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर फंक्शन नेम इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिफायर के रूल आने चाहिए। ये पैरेंथेसिस स्टार्ट है जो कि कंपलसरी पार्ट है, कॉलन ऑपरेटर है ये लगा हुआ है, ये आपको इंडेंटेशन प्रोवाइड करेगा फंक्शन के कोड को, ब्लॉक बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। ये यहाँ पर जो लिखा देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट क्या कर रहा है, ये कंपलसरी नहीं है, विच इज ऑप्शनल। जो पैरामीटर वाला पार्ट है ये क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब हो सकता है कि कुछ फंक्शन ऐसे जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट ना करे। क्लियर। तो नेक्स्ट ये यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा, बेसिकली वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो वो भी पॉसिबल है, हमें रिजल्ट को यहीं प्रिंट करना है तो हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने सपोज एक प्रोग्राम बनाना, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शंस। तो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, ये सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। एक बात याद रखिए, किसी भी चीज को यूज में लेने से पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है। ये यहाँ पर हमने डिफाइन किया ऐड फंक्शन को। ऐड फंक्शन का नाम है, एक आइडेंटिफायर है। ये यहाँ पर पैरेंथेसिस जो कि कंपलसरी सेक्शन है, कॉलन साइन ब्लॉक बनाने के लिए काम आ रहा है। ये स्टेटमेंट है एक्स एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, दोनों को इनपुट किया, x प्लस वाई इक्वल जेड किया, रिटर्न कर दिया जेड। ये फंक्शन बन गया। अब इसको जब हम कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐड फंक्शन कॉलिंग, इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है। जब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी तो एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट रिजल्ट। रिजल्ट स्टेटमेंट के अंदर इक्वल ऑपरेटर लगा हुआ है, उसके इधर लगा हुआ है ऐड। फर्स्ट ऐड विल एग्जीक्यूट, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, एक्स की वैल्यू इनपुट करेगा, वाई की वैल्यू इनपुट करेगा, जेड में दोनों का सम करेगा और रिटर्न कर देगा। और वो वैल्यू रिटर्न होकर के कहाँ आएगी, यहाँ जहाँ से ऐड को कॉल किया गया है वो वैल्यू आएगी। और वो वैल्यू यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर के थ्रू किस में चली जाएगी, रिजल्ट में, जिसको हमने फर्दर प्रिंट कर लिया। जैसे कि यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ, अगर फर्स्ट वैल्यू हमने 25 एंटर की है, सेकंड हमने 26 की है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है इसका 52।
1। तो ये क्या है, बेसिकली फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट है। फंक्शंस को हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप बार बार सुने, समझे और इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत है आपको, आप उनका ट्राई करें। ठीक है, थैंक यू।